बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी मैं बहुत दिन के बाद आपके पास आपके सामने आया कि बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था एक वीडियो बनाने का। हमारे पास चूंकि अभी थोड़ा बिजी थे, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई नीट और आपका CBSE ऑल्सो, you can use everywhere. So that one small topic we are going to discuss, that is collision. Collision. Collision क्या है तो नाम ही बता रहा है. It's from name it is clear that interaction between two bodies. That two bodies interact with each other, that is called collision. Okay, then this collision, suppose सिंपल वे में अगर कहें तो एक बॉडी इधर से आ रहा है, एक इधर जा रहा, इधर आ रहा है या जा रहा है, एंड ये इससे कोलाइड करता है, देन व्हाट विल हैपन एंड इन विच सर्कमस्टांसेस द कोलिजन विल अकर. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सो कोलिजन कैन बी इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स. अलग अलग पार्ट्स में कोलिजन को डिवाइड किया गया है. इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स. पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन. सो अगर डायमेंशन देखें तो कोलिजन इज वन डायमेंशनल कोलिजन. सेकेंड इज टू डायमेंशनल collision, and the third is three-dimensional collision. On the basis of energy, this is on the basis of dimension. On the basis of energy, energy के basis पर कौन सा collision है? So देखिए, type of collision on the basis of energy. On the basis of energy, energy मतलब if energy remains constant during the collision, then the collision is elastic collision. So detail we are going to study. So first it is energy collision, elastic collision, and second inelastic, and third perfectly inelastic. So this you can understand: elastic, inelastic, and perfectly inelastic collision. Elastic collision by default can be also perfectly elastic collision. इसका मतलब ये है कि अगर simple elastic collision दिया हुआ है, then you must understand this may be perfectly elastic collision. तीसरा जो collision है on the basis of line of action means head on collision और oblique collision. मतलब जो collision हो रहा है वो direct one line में है, तो it is head on collision. And if it has certain orientation, that is line of action is different, that is suppose one body is here, another is little bit side, यहाँ से side है, तो ये जो collision होगा that is oblique collision. Head on collision and then oblique collision. So इतने टाइप का collision है. अब इसमें one by one you have to study. First we are going to study head on collision. It means head on collision will be in one dimensional, and head on collision, one dimensional collision and elastic collision. So, one-dimensional collision, elastic collision, one-dimensional collision can be elastic, can be inelastic, can be perfectly inelastic. So, it is common to all three. तीनों एक collision किसी के साथ हो सकता है.
एक कोलिजन किसी के साथ होती, सपोज हमने 1D लिया, सो 1D कोलिजन कैन बी हेड ऑन elastic and it can be head on inelastic, it can be head on perfectly inelastic, it can be oblique elastic, like that. So first the simplest form we are going to take, that is the head on collision. So what is this head on collision? Head on elastic collision. हेड ऑन का मतलब ही क्लियर है कि बॉडी अगर कोई मास m1 है, लेट द बॉडी A and another body B, head on along the axis, point to point in front of it, that is center to center, it must match, center to center must be in one line, that is head on collision. If its speed is u1 and इसका स्पीड अगर u2 है and it is given that u1 greater than u2. अब कोलिजन में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन द कोलिजन, बोथ कोलाइड्स. तो बेसिक कंसेप्ट इसमें है, क्या है, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट? इफ नेट फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ बॉडी इज जीरो और बॉडी इज जीरो, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल कंजर्व. अब कोलिजन में नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज जीरो ड्यूरिंग द कोलिजन, सो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व. सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, ऑलवेज कंजर्व. इसको याद रखना अच्छी तरह से, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व. रीजन इज सिंपल, नेट फोर्स इज जीरो. कैसे देखो, ये दो बॉडी है, आपस में कोलाइड कर रहा है, इसमें कोलाइड किया तो इस वाले पर एक फोर्स लगाया, द फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस ब्लॉक ऑन दिस, एंड सिमिलर इज द हियर, इस पर भी एक फोर्स लगाया. बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स इज जीरो. So momentum of the system will be conserved. Net force zero, so momentum is conserved. Conserve means ये collision के टाइम जब collision हो रहा है तब ये इवेंट हो रहा है. And after collision obvious है, during collision the speed of the body ball will variable, change हो सकता है, तो घटेगा फिर बढ़ेगा, like that. So it is variable. So let at any instant its speed is v1 dash and its speed is v2 dash. ये बॉल क्या करता है, अज्यूम करो कि दो रबर का बॉल है, वो एक दूसरे से टकराया, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन, राइट. तो ये प्रेस हो गया, थोड़ा ये प्रेस हो गया, एंड देन इट टेक्स द शेप ऑफ ओरिजिनल शेप. लेटर ऑन इट टेक्स द ओरिजिनल शेप, बाद में अपना ओरिजिनल शेप ले लिया. अब आफ्टर कोलिजन इज ओवर, कोलिजन ओवर हो गया. नोटिस करना, इसका स्पीड जो है बी वाले का वो पहले से ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है इस पर, और इसका स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, सो इसका स्पीड कम हो जाएगा. सो सिंबॉलिकली वी कैन टेक द m1 इज लाइक दिस एंड m2 इज लाइक दिस. यहाँ का स्पीड है v1 और यहाँ का स्पीड है v2. इज इट क्लियर? तो देखो बेटा, ये काफी m1 है, ये v1 है, दोनों का स्पीड आफ्टर कोलिजन हो गया. इट इज टू सिंपल, वेरी सिंपल है. मोमेंटम, यहाँ का स्पीड e1 e2 था जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन. स्पीड सिंबल इज v1 एंड v2. वेलोसिटी इज लाइक दिस एंड ऑल इंसिडेंट्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ये देखो. सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ, ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पल्स. लाइन ऑफ इम्पल्स, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पल्स.
एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट लाइन है कांटेक्ट लाइन पर, उसके परपेंडिकुलर होता है लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ इम्पल्स। लाइन ऑफ इम्पल्स, लाइन ऑफ इम्पल्स के अलोंग मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। तो इंडिविजुअल बॉडी का, दोनों बॉडी का मोमेंटम, सम ऑफ द मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड बट द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी विल चेंज। रीजन, individual body is getting external force. Individual body is getting external force. So this is the collision you are getting. Now you see, in case of elastic collision, the kinetic energy initial side, before collision and after collision will be also same. But in other collision it will not be same. There is loss of kinetic energy. In other collision kinetic energy का loss होगा, इसमें ऐसा लॉस नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन में बोथ एनर्जी विल बी इक्वल। ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी डाउन होगा, फिर ओरिजिनल हो जाएगा। मोमेंटम के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मोमेंटम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन और एनी टाइप ऑफ कोलिजन। किसी भी कोलिजन में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अगर इसको हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, मान लो कुछ देर के लिए अगर इस तरह से हम ग्राफ एक बनाए, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट, यहाँ फाइनल, एंड दिस इज द डेल्टा टी टाइम ड्यूरिंग द डेल्टा टी द टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन, मीन्स दिस इज द इंस्टेंट बिफोर कोलिजन, दिस इज द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द कोलिजन। दैट इज डेल्टा टी सेकेंड टाइम इज टेकन ड्यूरिंग बाय द कोलिजन। अब देखो बेटा, ये है यहाँ पर, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। मोमेंटम ऑल द टाइम विल बी कंजर्व्ड। रीजन आपको क्लियर है। सो मोमेंटम का ग्राफ जाएगा सीधा स्ट्रेट लाइन, नो चेंज। यानी मोमेंटम पी आई और पी एफ, पी आई और पी एफ इक्वल रहेगा। ये इनिशियल स्टेज है फाइल, मोमेंटम का ग्राफ सीधा जाएगा। दूसरा कौन सा है? कोलिजन इलास्टिक है। इज इट इलास्टिक और इज इट इन इलास्टिक? देन व्हाट विल डू इन दैट केस? इलास्टिक कोलिजन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज फाइनल काइनेटिक। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। सो ग्राफ क्या बताएगा? अगर इसको हम एनर्जी ले इनिशियल, तो स्टार्टिंग में डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, पहले डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होकर के फिर उसके बराबर हो जाएगा। दैट इज, अगर हम इसको के ई आई ले और इसको हम ले के ई एफ, तो बोथ विल बी इक्वल। ये ग्राफ दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट नंबर 2, inelastic collision. If inelastic collision there is certain some loss of energy. So if we start from here, the graph will go like this, but it will not reach here. Final kinetic energy will be like this only. This is inelastic collision. ये है आपका inelastic collision और ये है elastic collision. Then what is perfectly inelastic collision? There is maximum loss in case of perfectly inelastic collision. सबसे ज्यादा लॉस उसी में होता है। तो यहाँ से चलेगा and that will be much below here आ गया, यहाँ पर आएगा kinetic। So ये जो ग्राफ आया that is called perfectly inelastic collision. So क्या कंक्लूजन आपने देखा कि इलास्टिक कोलिजन में द लॉस इज, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन द लॉस इज 0। इन इलास्टिक में लॉस होगा, बट परफेक्टली इन इलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस होगा, इसलिए ये लॉस है, इतना लॉस हो जाएगा। सबसे ज्यादा लॉस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होगा। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोलिजन, मोमेंटम एक्सेट्रा। अब
इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर इसी चीज को लिखे इक्वेशन बना करके, उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन आएगा. लेट अस सी दैट एक्सप्रेशन. अब इसको हम ये कर रहे हैं. मोमेंटम विल बी कंजर्व. अभी आपने देखा मोमेंटम सिंपली होता है मास इनटू स्पीड. तो सम ऑफ द मोमेंटम दैट इज यू कैन राइट m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज pi इक्वल टू pf. ये दोनों मोमेंटम बराबर होगा. ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोलिजन हो रहा है देन आल्सो मोमेंटम विल बी कंजर्व. m1 v1 dash plus m2 v dash and this will be also after collision m1 v1 plus m2 v2. ये after collision, ये during collision, in the beginning of the collision, ये after collision. Momentum, sum of the momentum is equal. Individual का momentum equal नहीं होगा. So ऐसे केस में आप क्या करते हैं, m1 e1 इसको अगर इग्नोर करेंगे प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये दोनों बराबर हो आइडेंटिकल. m1 e1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. अब इसको सॉल्व करके आप सिंपली आप ला सकते हैं इस साइड में. दैट आप नो यू नो बेटर u1 माइनस v1 एंड यहाँ पर आप ला सकते हैं m2 v2 माइनस u2. ऐसा आप कर सकते हैं. नाउ सेकेंड स्टेप में यू कैन राइट दिस इज इक्वेशन 1. सेकेंड स्टेप में आपका आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. व्हाई? सिंस द कोलिजन इज elastic. Since the collision is elastic. So what you will write in that case? Kinetic energy initial kinetic energy half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. क्लियर है? बोलिए. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों आइडेंटिकल. सिंस द कोलिजन वी आर कंसीडरिंग इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगे इक्वल. अब देखो बच्चों, अगर अब हम ऐसे करें, ये इक्वेशन 1 था, इसको हम अगर सॉल्व करें तो हाफ सब कैंसिल हो जाएगा. दैट यू नो वेल. इसको इधर ले आए तो m1 e1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. इसको आप लिख सकते हैं m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 m2 v2 माइनस u2 and v2 plus u2. This you can write. अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड राइट दिस इज एज इक्वेशन नंबर 2. अब डिवाइड कर दो तो इसमें इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. देन व्हाट विल कम? m1 u1 minus v1 u1 plus v1 m2 v2 minus u2 and v2 plus u2 divided by कितना? m1 u1 minus v1. एंड यहां पर हो जाएगा and this will be m2 v2 minus u2. ये डिवीजन हो गया दोनों इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. नाउ यू कैन कैंसिल आउट दिस. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. m2 भी कैंसिल. सो यू आर गेटिंग ओनली u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2. ये
but remember this is for perfectly or elastic collision or perfectly elastic collision, the same thing both. So you can write u1 minus u2 and v2 minus, ध्यान से देखना, u1 minus u2 मतलब ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी अदर, दूसरे के रेस्पेक्ट में ये है। तो दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है तो वो वाला वेलोसिटी वो वाला ब्लॉक रेस्ट में होगा, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। u1 माइनस u2 इज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी मींस वन ऑफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में हो गया और ये वाला चल रहा है अब किस स्पीड से, u1 माइनस u2 से। सो दिस इज क्लोजर, गेटिंग क्लोजर टू ईच वन, सो इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको बोलते हैं अप्रोचिंग कर रहा है तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इतना वेलोसिटी से ये इससे अप्रोच कर रहा है। एट द सेम टाइम these two are getting separated, since after collision इसका स्पीड हो जाएगा लेस और इसका स्पीड होगा मोर, so they will never collide, so they will separate with each other, v1 v2 minus v1 means velocity of 2 with respect to 1। तो 1 अब रेस्ट में है मान लो, एज पर दिस रिलेटिव वेलोसिटी में जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसको रेस्ट में मानते हैं, तो ये रेस्ट में हो गया एंड दिस इज मूविंग विद स्पीड v2 माइनस v1, इसका नया स्पीड है v2 माइनस v1 बट दिस इज एट रेस्ट, सो इट इज गेटिंग सेपरेटेड, मतलब ये दूर चलते चला जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये आपके सामने आ गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर बराबर है देन कोलिजन विल बी इलास्टिक। नाउ अगर ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू या v2 माइनस v1, ये है। अब ये अगर ये दोनों बराबर है तब तो कोलिजन इलास्टिक हुआ, और अगर बराबर नहीं है तो इनइलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है। तो इसके लिए एक कांस्टेंट इनकॉर्पोरेट किया गया, एक वन कांस्टेंट इज गिवन टू इंडिकेट दैट द कोलिजन इज इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल इट इज गिवन हियर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये है आपका रेशियो, एंड इस रेशियो का नाम दिया गया E इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, v2 माइनस v1 अपॉन